Discussing about chapter number 3, the doubt session, and hence we are now also we are going to continue with the doubt session only. So let's get started. I am opening the chat box and I'll be sharing the screen for the PDF, and one by one I'll be taking your name and you can address it just in case you have any doubts or queries, right everyone? So there you go. Yesterday we stopped at Dhruv, if I'm not wrong. So we are going to start with Dhruv only. So Dhruv Gupta, kindly mention your doubts so that we could start on with the session. After Dhruv Gupta, Ishita and Kanishka. You two also please be ready so that we should not waste any kind of times. So Dhruv Gupta, I'll wait for your question. Ma'am, can you please explain me the suitability of a government company? Okay, sure, Dhruv. Let me just switch on to that PDF. So yeah, here are the three basic points when we talk about a government company. Along with that, I would like to mention Ishita and Kanishka, please be ready with your doubts. Okay, so yeah, so when we talk about the suitability of a government company, the first point says where the government wishes to have the participation of government sector and private sector. So first of all, जब हम government company की बात करते हैं, so mainly कब suitable होता है वो हमारे लिए, it is when the government, that means the people of the government, they tend to wish that okay, यहाँ पे government sector भी होना चाहिए and private sector भी होना चाहिए. तब हम बात करेंगे एक government company. एक गवर्नमेंट कंपनी तभी सूटेबल है जब गवर्नमेंट की विश होती है कि देयर शुड बी अ गवर्नमेंट सेक्टर आल्सो एंड देयर शुड बी अ प्राइवेट सेक्टर आल्सो. अब कैसे? As we have already differentiated between a government company and a private company. If you remember, we talked about a government company and a private company. So जब गवर्नमेंट को एक डिफरेंशिएशन करना होता है एक गवर्नमेंट सेक्टर में और एक प्राइवेट सेक्टर में, तब वो सबसे ज्यादा सूटेबल है. फर्स्ट पॉइंट. The second says where the government wishes to bring its own enterprise to compete with the private sector. Second का बात है जब उनको लगता है that yes, we should provide some competition to the private sector. That means we should provide something. हमें कुछ ऐसा show करना चाहिए private sector को भी that the government sector is not lacking behind. That means the government sector can also do something. Okay, so that is again जब हमें competition level, जब हमें competitive spirit दिखानी होती है, that is again when we talk about the second point. The third point says where the product or service of social need is to be provided at a lower cost. सबसे बड़ी चीज क्या होती है जब भी हम किसी गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं, we have already talked about this, तो उसमें क्या होता है हमें हमेशा देखना पड़ेगा जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो हमें हमेशा कम रेट पे पैसे देती है. दैट मीन्स कम रेट पे हमें चीजें मिलती हैं, कम रेट पे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं. अगर मैं बात करूं किसी भी प्रोडक्ट की, अगर मैं वही चीज किसी गवर्नमेंट कंपनी से लूंगी तो मुझे कम मिलेगा. एक छोटा सा वो लेते हैं एग्जांपल, राशन शॉप्स. अब एज यू नो नाउअडेज लॉकडाउन इज गोइंग ऑन. राशन शॉप्स में जो पॉवर्टी लाइन से बिलो लोग होते हैं उन लोगों को दे आर प्रोवाइडिंग द राशन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर मैंडेटेड कि 5 kg ऑफ राइस या फिर 5 kg ऑफ व्हीट मिलेगा एंड द 1 kg ऑफ दाल इज टू बी प्रोवाइडेड टू दोस पीपल. अब क्या होगा, अब अगर हम वही चीज अगर हम बात करें नॉर्मल दिनों की, नॉट अबाउट द लॉकडाउन बट हम नॉर्मल डेज की बात करते हैं. सो इफ आई गो now if somebody goes to a normal shop, I get 1 kg of sugar suppose for 70 rupees. But wahi 1 kg of sugar, if I go to a government ration shop, I will get it in approximately 40 rupees. So again, जब हमें कोई प्रोडक्ट जो नीड का प्रोडक्ट होता है उसको कम कॉस्ट में प्रोवाइड करना होता है तो हमें गवर्नमेंट कंपनी सेटअप करते हैं, राइट? So Dhruv Gupta, did you understand the suitability or not? Just let me know. आई एम वेटिंग इन द चैट बॉक्स. पहला, जब हमें पार्टिसिपेशन करना है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का. सेकंड, जब हमें कंपटीशन लेवल करना है. और थर्ड, जब हम लोगों को कोई भी ऐसी चीज, कोई भी नीडी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है लो कॉस्ट में पब्लिक को. ध्रुव गुप्ता, आई विल वेट फॉर योर आंसर. Yes, ma'am, understood. Thank you, ma'am. Okay, thank you so much, Dhruv. Next goes with Ishita and Kanishka. I'm waiting for your doubt. Please address your doubt in the chat box. Okay, so Ishita and Kanishka, they don't have any doubt. Good. Let's proceed forward. Let's move on to Keshav, Khushi, and Nilima. So Keshav, Khushi, and Nilima, kindly address your doubt just in case you have in the chat box.
So I got the message from Khushi. She doesn't have any doubt. We'll go on with Keshav and Nilima. Please address your doubt in the chat box. I'll wait for your answers. Next goes with Nigar and Paridhi as well. Sorry. Okay. So where were we? Yeah, we were talking about Nilima and Nigar and Keshav. Kanishka, ma'am, there is low charging in the battery. Can I leave? Kanishka, see, the point of you attending the class is that you will be able to, address all what is going on in the class. So if you're going to miss the doubt session, it is basically किसी और का doubt होगा, तो you also should be learning something from that. Okay, Kanishka. So if there is low charging in the phone, just go and sit nearby the charging point, and you can charge your phone. I would request, and I would, I'll say advise, not even request. I'll advise you not to leave the class, and obviously I won't be able to give you the attendance this way. So please attend the class, okay? Okay, so let's come to the doubts. I got a doubt from Nilima. Ma'am, can you please explain reduction in PSUs? Yeah, sure. Let me go on with that. I think this was the topic which was given in here, right? Nilima, the thing you are talking about, that is reduction in PSUs, is this one? The changing role wherein we talked about this one? Okay, so I got the point. Yes, so we're talking about economic reforms in public sector. Just making we talked about the reduction in PSUs. PSUs is basically public sector units. Okay, so when we talk about economic reforms in the public sector, इसमें जब हम reduction की बात करते हैं, so it says in industrial policy 1956, only 17 industries were reserved for the public sector. That means जब हमारा starting में हमारी industrial policy आई थी 1956 में, तो हम लोगों ने बात करी थी दैट ओनली 17 इंडस्ट्रीज हम लोगों ने रिजर्व कर रखी है पब्लिक सेक्टर के. इफ यू रिमेंबर, हमने एक टेबल पढ़ा था जिसमें कि हमने टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करी थी कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं विच आर देयर इन द पब्लिक सेक्टर, राइट? सो हमने जब स्टार्ट किया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 17 इंडस्ट्रीज थी, बट धीरे धीरे इट वाज रिड्यूस्ड टू 8 इंडस्ट्रीज इन 2001 एंड फर्दर टू 3. दैट मीन्स रिड्यूस करते 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 एंड में जाके सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज बची थी, जो कि हमने 2001 में देखा था कम होती गई, और सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज थी जो कि बची थी पीएसयूज में, जो कि मेनली थी एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एम्यूनेशंस एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट. आर्म एम्यूनेशंस, आई टोल्ड यू, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस का मतलब क्या होता है, जो वेपन्स वगैरह यूज होते हैं ड्यूरिंग द वॉर एंड ऑल, तो उसको आर्म्स एंड एम्यूनेशंस होते हैं. This implies that the private sector could enter all areas except the above 3 areas, and the public sector has been set to compete with the private sector. इसका मतलब क्या हुआ? It means that this duration, अब obviously अगर हमने obviously bind up कर दिया है that only these 3 industries can be, only these 3 industries can be a part of public sector, और बाकी सब में तो private sector आ ही सकता है. तो क्या हुआ? Private sector आते ही competition start हो गया. Why? Because 17 इंडस्ट्रीज से आपने 3 इंडस्ट्रीज में रिड्यूस कर दिया पब्लिक सेक्टर को, और अब जितनी भी इंडस्ट्रीज बाकी बची हैं उसमें द प्राइवेट सेक्टर कैन enter. So both the public sector and the private sector need to be viewed as mutually complementary. Private sector also has to assume greater public responsibilities. That means अगर हम इसकी बात करें रिडक्शन इन PSUs की, कि अगर हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स डिक्रीज कर भी दी है, तो भी जो आपका जो प्राइवेट सेक्टर है, अगर वो आपका एंटर कर रहा है किसी भी अदर इंडस्ट्री में, तो उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी फॉर दी कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फॉर दी सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल. ओके, इसी के साथ यू हैड वन मोर डाउट व्हिच इज रिटन एज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज. सो अगर हम बात करें डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज या प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज, इसका अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप पब्लिक सेक्टर का जितना भी इक्विटी है, दैट मीन्स हम लोगों ने पढ़ा था जितने भी आपके शेयर्स हैं प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के, वो आप सारे प्राइवेट में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? जैसे कि selling the equity shares of public sector enterprises to the private sector is known as disinvestment. That means इसको सिर्फ याद करने का बेस्ट टेक्निक क्या है, जस्ट इमेजिन पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्जन.
ओके, दिस इज रेफर टू एज द डिसइन्वेस्टमेंट। अगर कोई आपसे डायरेक्ट मीनिंग पूछता है कि इसका मीनिंग क्या है डिसइन्वेस्टमेंट का, तो डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, जब हम पब्लिक सेक्टर को एक प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, राइट। द पर्पस, अब पर्पस क्यों था, ऐसा क्यों किया? द पर्पस वाज टू रेज मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, improve the managerial performance and ensuring the finance discipline। जैसे कि बहुत ज्यादा फाइनेंस क्रिएट हो, बिकॉज ऑब्वियसली हमने इससे पहले बात करी थी कि जो पब्लिक सेक्टर था वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था। सो दैट वाज द मेजर रीजन कि क्यों हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट में शिफ्ट किया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाज हैविंग दैट काइंड ऑफ इनिशिएटिव, वो थोड़ा सा मोटिवेटेड था, वो थोड़ा सा काम अच्छे से कर पा रहे थे, बट जो आपका पब्लिक सेक्टर था वो इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था। तो दैट वाज द बेसिक रीजन कि हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया उस चीज का, राइट। दैट मीन्स हमने शिफ्ट किया पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में। और हमने क्यों किया? इट वाज बेसिकली टू हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दैट मीन्स अच्छे से फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें मिले और अच्छे से सारा प्रोसेस हो पाए। आई होप ये दो डाउट क्लियर हो गए नीलिमा। द थर्ड डाउट नीलिमा इज मीनिंग ऑफ ऑडिट। सो ओके, अगर मैं नॉर्मल बात करूं नीलिमा, व्हाट एग्जैक्टली ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई सुपरवाइज करता है, आपकी कोई सारी चीजें देखता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बात करें किसी कंपनी में ऑडिट क्यों होता है? एक कंपनी में ऑडिट इसलिए होता है बिकॉज दे शुड कम एंड दे शुड सी कि आप जो भी कर रहे हो इज इट राइट और नॉट, आपको सही काम कर रहे हो, आप मैनिपुलेशंस तो नहीं कर रहे, आप फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे, आप कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, आप कुछ झूठ तो नहीं बता रहे। सो ऑल दीज थिंग्स आर रेफर टू एज ऑडिट। तो इसलिए हम ऑडिटर्स रखते हैं जो कि टाइम टू टाइम आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, आपके सारे जो प्रोसेसेस होते हैं कंपनी के वो सारे चेक करते हैं, राइट। सो नीलिमा, आई विल वेट फॉर योर आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट? ओके, okay, thank you ma'am, understood. Okay, thank you Nilima. So let's move on with Lochan, Nigar and Paridhi. Lochan, Nigar and Paridhi, quickly I'll wait in the chat box. I'll wait for your questions just in case you have. Okay, Nigar, no doubt ma'am. Thank you so much for that. Okay, thank you Nigar. So let's go on with Paridhi. Okay, so Paridhi, your question is meaning of triple P. Okay, let me go on and switch to that slide. So Paridhi, when we talk about triple P, it is basically public-private partnership. अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नाम से ही बता रहा है कि एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी के बीच में पार्टनरशिप होने वाली है, राइट। अगर हम इसको ब्रीफली ऐसे लेम लैंग्वेज में बात करें, now let's talk about what exactly it is. It is a partnership between the public and the private sector with clear agreement on shared objectives for the completion of government project meant for public utility. That means एक प्राइवेट कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी के बीच में पार्टनरशिप हो रही है। और क्यों हो रही है वो पार्टनरशिप? वो इसलिए हो रही है ताकि कोई एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को हम खत्म कर पाए, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ डीएमआरसी व्हिच वाज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। अब उसका क्या है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, एवरीबडी नोज। अब वो क्या है? वो पब्लिक यूटिलिटी के लिए। पब्लिक यूटिलिटी मीन्स दैट इज मेंट टू बी यूज्ड बाय द जनरल पब्लिक, राइट। दिस इज मेंट विद पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? जो और लोग हैं, जो कि बाकी द अदर पीपल ऑफ द कंट्री, इट इज मेंट टू बी यूज्ड बाय देम, उनकी कन्वीनियंस के लिए बनी है वो चीज, राइट। तो जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है गवर्नमेंट का जो कि पब्लिक के लिए होता है और उसके बीच में जो पार्टनरशिप आती है, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। अब इसका अगर हम ब्रीफली बात करें ऐसा क्यों होता है, तो यूजुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो होता है, right, when we talk about a normal private sector is very already ऐसा myth है या कह सकते हैं already it is in mindset that it is very competitive। उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा होती है, उनके पास इनिशिएटिव लेने की that kind of motivation and everything is lot among the प्राइवेट सेक्टर। अब हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर पर मनी तो होगा, उनके पास सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वो पब्लिक सेक्टर है तो सारा गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करता है। बट जब हम बात करते हैं अच्छी चीजों की, दैट मीन्स वी टॉक अबाउट द इनिशिएटिव, वी टॉक अबाउट द इनोवेशन, वी टॉक अबाउट द मोटिवेशन, वो जो सारी चीजें होती है, वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर का हमेशा ज्यादा होता है पब्लिक सेक्टर से। ओके, सो दैट इज द रीजन कि लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं फॉर सच काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो कि बहुत ह्यूज होता है। और इसकी अगर हम सूटेबिलिटी की बात करें, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं
These were basically the examples जो हमने पढ़े थे. अगर हम इसको मेन बात करें तो ये क्यों होता है, ये कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है. कैपिटल प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो कि बहुत ज्यादा दे हैव लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन. दैट मीन्स बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा हजार हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट. सो दे मेंट फॉर such kind of projects which are capital projects, जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है और उनको टाइम भी लगता है बनने में, राइट. So Paridhi, just let me know, did you understand or not? Or is there any other doubt? Till the time I'll wait for Paridhi's reply. Let's go on with Pranav, Pulkit and Ritika. So Pranav, Pulkit and Ritika, kindly mention your doubts just in case you have. If not, just kindly write no ma'am, no doubts. I repeat, Pranav, Pulkit, Ritika. Pulkit, I got your answer. No doubt, ma'am. Okay, Pulkit. What about Pranav and Ritika? Ritika, no doubt, ma'am. Okay. What about Pranav? Pranav, Ronak, Malhotra, Sajal. I repeat, Pranav, Ronak Malhotra and Sajal. Any doubt? Pranav, any doubt you have? Thank you, Pulkit. Thank you, Ritika. No doubts. Ronak, no doubt. Okay. Pranav, no doubt, ma'am. Okay. Let's proceed on with Sajal, Sameer and Shiv. Sajal, Sameer, Goel and Shiv. Any doubts? Sajal, no ma'am. Sameer, no doubt, ma'am. Good. What about Shiv, Shruti Garg and Siddhi now? Shiv, ma'am, no doubt. Okay, thank you, Shiv, Sameer, Sajal. Shruti Garg, Siddhi and Some. Can we have your doubts, please? Some, no doubt, ma'am. Siddhi and Shruti. Tanisha, Vishali, Vansh Shukla, Vidyanshi and Yash. Okay, Shruti, no doubt, ma'am. Thank you for asking. Thank you, Shruti. Yash, no doubt, ma'am. So all the students who are left in the class, already we have I have taken all the names. Just in case if anybody is there who has any doubt, we can discuss it. Vansh Shukla, no doubt, ma'am. Okay, Vidyanshi, no doubt, ma'am. Siddhi, ma'am, please give me 1 minute. Okay, Siddhi, sure, take your time. Vishali. Okay, Vishali has a doubt. Vishali, ma'am, what is meant by administrative autonomy? Okay. Vishali, could you please elaborate the page number on which it is written? Okay, so you have to check. See, I don't know which page number it was. I don't know, but let me just tell you इसका basic meaning क्या होता है. So when we talk about this administrative autonomy, it basically means autonomy का मतलब क्या होता है? हमेशा जो operations होते हैं, that means जितना भी काम होता है, जितना भी सब कुछ होता है, उसमें हमेशा एक supervision होता है, right? That means there is somebody who is the head of everything. समझ रहे हो? सो फॉर ईच एंड एवरी, अगर हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी में ऑटोनॉमी किसकी होती है? हमेशा गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो होती है उनकी ऑटोनॉमी होती है. Autonomy in the sense they will be the ones who will be taking all the charge and they will be the one who will be talking about each and everything. They will be the one handling each and everything. Okay, so autonomy का मतलब क्या हुआ? जो पर्सन हेड होता है. ओके, अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करे जाते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस जो भी हम काम करते हैं इन अ पर्टिकुलर कंपनी कि दिस विल बी द टाइमिंग जिसमें एम्प्लॉयज आएंगे, दिस विल बी टाइम एट विच द एम्प्लॉयज विल गो, दिस विल बी द टाइम व्हेन दे नीड टू रिपोर्ट टू द ऑफिस एंड दिस ऑल वर्क शुड बी असाइंड. ये जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उसका भी कोई एक हेड होता है. उसको बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी. दैट मीन्स समबडी विल बी द हेड
somebody will be the one who will be checking each and everything, somebody will be seeing कि सब कुछ specified acts के according हो रहा है या नहीं हो रहा, specified rules and regulations के according हो रहा है या नहीं हो रहा, या specified agreement के according हो रहा है या नहीं हो रहा, right Vishali? So this was the literal meaning of this, but just in case you find out the page number, you tell me, I'll explain according to that also. So what about the other students who are present in the class? Okay ma'am, thanks a lot. Okay, thank you Vishali. So I can see 34 participants in the class. Is there anybody who want to address any kind of doubt? Anybody who has any other doubt, or the one who has already missed the chance or still has anything to talk about chapter number 3? Okay, Siddhi has something to talk about. Siddhi, you wanted to ask about, what is it? Suitability of a departmental undertaking. Okay, so let me address this doubt also. So Siddhi, when we talk about suitability of a departmental undertaking, सबसे पहले हम बात करते हैं departmental undertaking होता क्या है. Departmental undertaking वो होता है जो कि government के अंडर में आता है. जैसे कि under this form of organization, a public enterprise is run as a department of the government. That means वो अंडर द गवर्नमेंट के अंडर गवर्नमेंट ही चलेगा. दैट मींस गवर्नमेंट विल बी द वन, सॉरी, हु विल बी टेकिंग ऑल द चार्ज ऑफ इट. अब इसका जो कंट्रोल होता है, राइट, इट इज बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, राइट. जैसे कि अगर हम बात करें इन द एग्जांपल, इफ यू कैन सी इंडिया पोस्ट, इंडियन रेलवेज, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक. तो इंडियन रेलवेज की बात करें अगर हम, तो इंडियन रेलवेज क्या होता है, इट इज बेसिकली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. क्यों? क्योंकि वो सारा गवर्नमेंट के अंदर आता है. उसमें कौन काम करेगा, किसको कितने पैसे मिलेंगे, यू नो, कब ट्रेन जाएंगी, द स्केड्यूल, ईच एंड एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली. और ये किसके अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर. ओके, अब हम बात करते हैं सूटेबिलिटी. कब ज्यादा सूटेबल है हमारे लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसी और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से. ओके, so every departmental undertaking tends to raise the power of the government to the maximum and reduce its initiative and flexibility to the minimum. जैसे कि अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो पावर होती है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, जो होल्ड होगा, ऑब्वियसली वो मैक्सिमम हो जाएगा. क्यों मैक्सिमम हो जाएगा? ऑब्वियसली इसलिए मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि यू नो द गवर्नमेंट विल बी द वन हु विल बी टेकिंग ऑल द इनिशिएटिव, all the operations, all the administration, each and everything will be done by the government only, right? तो इसलिए उनका जो पावर होगी वो होगी मैक्सिमम. अब हम बात करते हैं उनकी इनिशिएटिव और फ्लेक्सिबिलिटी. अब जैसे हम बात करें किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की या किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की, तो उसमें हमने बात करी थी द पीपल आर अ बिट lethargic, they tend to have less of initiative, they tend to have less of flexibility, less of motivation you can say. तो इस टाइप की चीजें ज्यादा हो जाती हैं. तो इसलिए जो आपका इनिशिएटिव और फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाती है. क्यों? क्योंकि आप इनिशिएटिव लेना ही नहीं पसंद करोगे व्हेन यू नो दैट द गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. और किसी भी एक चेंज के लिए यू हैव टू गो टू द हायर अथॉरिटी ईच एंड एवरी टाइम, और उनकी you have to talk to them that please let me do this or let me do this or let's do such kind of a thing for such a innovation or something like this. तो वो नहीं हो पाता. it takes a lot of time. और flexibility भी खत्म हो जाती है. flexibility because obviously we know कि एक set of rules and regulations होते हैं, right? एक उसी के अंडर you have to work in that particular rules and regulation. वो flexibility नहीं होती तो वो क्या होता है, वो minimum पहुंचा, right? It should therefore be the rare exception and not the general rule. दैट मीन्स ये एक्सेप्शन होना चाहिए, जनरल रूल नहीं होना चाहिए. कि अब मैंने जैसे बताया हमेशा ऐसी बात नहीं है कि उनमें इनिशिएटिव नहीं होगा या वो लोग काम नहीं करेंगे. इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दिस, बट इट्स लाइक मोस्टली ऐसा ही होता है, राइट. द एक्सेप्शनल केसेस वेयर इन द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल आर एज फॉलोज. अब कहाँ सूटेबल होते हैं? द फर्स्ट, for the operation of economic controls like rationing, state trading, etc., which involve exercise of monopoly power and use of government authority. That means अब इसमें rationing क्यों लिखा हुआ है? अभी हमने rationing की बात करी थी. जब भी हम लोग को ये दिखाना है कि इकोनॉमिक कंट्रोल है, दैट मीन्स जब भी हमें ये दिखाना है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है किसी चीज पे, तब हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. तब वो सबसे ज्यादा हमारे लिए बेस्ट है. क्यों? अगर हम राशनिंग की बात करें, अब इसको एग्जांपल लेते हैं. इफ यू टॉक अबाउट राशनिंग, सपोज इफ आई गिव एनी प्राइवेट वेंडर और somebody the right to do rationing, will he do it properly? No. What he will do? He will close the shop. He will not at all entertain anybody. But when it is under the government, तो हमें पता है कि गवर्नमेंट शॉप्स में हमें राशन मिल जाएगा, राइट. तो जब हमें दिखाना है मोनोपोली, आई डोंट नो यू हैव स्टडीड दिस इन इकोनॉमिक्स टिल नाउ और नॉट. सो मोनोपोली का मतलब क्या होता है? जब सिंगल सेलर होता है,
ओके, दैट मीन्स किसी और के पास वो प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ मेरे पास वो प्रोडक्ट है, राइट? सो दैट इज मोनोपोली. सो अगर हम राशनिंग की बात करें तो मोनोपोली आ जाएगी, तो यू नो द पर्सन विल चार्ज टू मच फॉर दैट. ओके, बट व्हेन वी हैव द गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन दैट, तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी आते ही, उनका पावर आते ही, इट इज ईजी to elaborate each and everything and go on in a particular time with appropriate things. Okay, so पहला जब हमें गवर्नमेंट का कंट्रोल दिखाना है फॉर इकोनॉमिक कंट्रोल, राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर द ऑपरेशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी. अगेन पब्लिक यूटिलिटी का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज जो कि इट इज यू आर डूइंग इट फॉर द होल पब्लिक, जो कि पब्लिक यूज करेगी, जो कि सारे लोग जो है वो यूज करेंगे. तो अगर हमें इस टाइप का कुछ काम करना है तो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अच्छी है, बिकॉज एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट वेंडर इतना नहीं सोच पाएगा कभी जितना आपका एक पब्लिक पब्लिक सेक्टर सोच पाएगा. व्हाई? बिकॉज पब्लिक सेक्टर इज ऑल अंडर द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द पीपल, इट इज फॉर द पीपल ओनली, right? Next one is in defense industries on account of the strategic importance and the need for utmost secrecy. अब departmental undertaking एक और तरीके से important है, suitable क्यों है? Defense. अब हम बात करें defense की. Now defense is the only and most prior authority जिसमें की secrecy level बहुत ज्यादा होता है. Secrecy in the sense even a small thing, इतना छोटा सा भी अगर information leak हो गई तो it will create a disaster for everybody, राइट. सो इसलिए हम बात करते हैं डिफेंस में भी सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का होना सबसे ज्यादा अच्छा है, एंड इट इज प्रायर ऑल्सो एंड इट इज सूटेबल ऑल्सो. ओके, ताकि जितने भी आपकी जो इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है इट इज केप्ट सीक्रेट ओनली, राइट. Last one is where the government wish to control the monopoly of the private sector for the goods and services in public sector, public interest. That means again when we talk about जब गवर्नमेंट चाहती है कि सारा कंट्रोल हमारे पास रहे and we should not give the undue advantage of monopoly to any private sector. जब हम वो नहीं चाहती कि हम प्राइवेट सेक्टर को किसी को इतनी अथॉरिटी या इतना इतना you can say the control, it doesn't want to share that kind of control with the private sector. वो नहीं चाहती because what will the private sector do? It will hike the price hike कर देंगे. So it will be difficult for the public to go on with the particular material, right? So that is again one more thing कि जो government है वो चाहती है कि हमारा control पूरा बना रहे. Right, everyone? So, whose doubt was it? Siddhi. Please tell me, is your doubt clear or not? Thanks, ma'am. Can you explain the applications of triple P and the meaning of red tapeism? Yeah, sure. When we talk about Siddhi, we are talking about applications of triple P. Let me just go on. There you go. So when we talk about triple P, अब meaning तो I've already, I hope you understand triple P, public-private partnership. Somebody's doubt was there, I just cleared it. ठीक है. When we talk about the application, पहला application कब आएगा? जब हमारे capital projects होंगे, right? That means जब हमारे huge investment होंगे, right? पहला जो applicability आती है, application आता है, वो तब आएगा जब हम लोगों को जो हमारे capital projects होंगे उनके लिए जरूरत पड़े. Right. The second one is it is suitable for capital project where the public sector wishes to retain the operating responsibility. Second हमारे सबसे ज़्यादा suitable कब होगा? जब हमें ये पता है कि public sector जो हमारी public company है, जो public sector economy है, उसको सारा control चाहिए. Operating responsibility. That means आप बना दो, आप साथ में कोई बना रहे हो. जैसे let's take an example of this one, DMRC. Delhi Metro बन गई public-private partnership से. बट अब जो ऑपरेशन हो रहा है, अब जो सारी चीजें हो रही हैं, अब जो चल रही है मेट्रो, इट इज ऑल डन बाय द गवर्नमेंट ओनली, राइट. सो सेकंड एप्लीकेबिलिटी कब आएगी कि बना तो आप साथ में लो, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू टुगेदर, बट ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स वो कैसे चलेगा, उसके जो ऑपरेशन होंगे वो कैसे चलेंगे, वो सारा कौन देखेगा? वो सारा हम खुद देखेंगे. दैट मीन्स द गवर्नमेंट विल बी टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. ओके रिद्धि, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. Okay, so next one you're talking about red tapeism. I don't know where you read it, so let me just tell you what red tapeism actually means. Red tapeism का मतलब क्या होता है सिद्धि? It is basically government जो companies होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा red tapeism होता है. Red tapeism in the sense उन्होंने एक set of rules and regulations बना लिए that this should be abided. That means ये rules and regulations already हो गए हैं and you have to follow each and every rule and regulation. तो इसमें क्या होता है, आपकी जो flexibility होगी, आपका जो initiative होगा, आपका जो इनोवेशन होगा वो नहीं आ पाता.
Why? Because obviously usually क्या होता है जब हम बात करते हैं, even it happens in private sector also, red tapeism होता है जिसमें कि हम बात करेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के चक्कर में वो कुछ नया कर ही नहीं पाते, राइट? अंडर द टेबल वाला काम होने लग जाता है इस चक्कर में, दैट यू कैन नॉट डू दिस थिंग, तो अंडर द टेबल ब्राइबिंग शुरू हो जाती है, राइट? तो जब एक यू कैन से इट इज अ केज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसमें कि लोग फंस जाते हैं, राइट? आई होप सिद्धि यू अंडरस्टूड रेड टेपिज्म आल्सो. Just write you understood or not. Siddhi, I'm waiting for your answer. Till the time, I'm just taking the video of the attendance as well. Okay, thanks, ma'am. I understood. Okay, thank you so much, Siddhi. So, I think today's session we can end with the thing that each and everybody has understood chapter number 3. Tomorrow, we'll see either we are going to discuss some of the question answers or we are going to start up with chapter number 4. We'll see how it goes on. Right. So, it's good to see that everybody has already understood, and I hope all your doubts have been already clear. Right. So all of you, thank you so much for attending the class, and we are going to meet up tomorrow. So you are good to go now. And I would like Paridhi to stay in the class. Paridhi, I repeat. Paridhi, please stay in the class. Others, you are good to go and you can leave. Thank you so much.